Chapter 3rd, Arithmetic Progression. Practice set 3.4. Practice set 3.4 based on application of AP. We apply the theory and formulae of an AP in solving various word problems which we come across in day-to-day life. So practice set 3.4. First question. On 1st January 2016, Sanika decided to save 10 rupees 11 on second day, rupees 12 on third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? मतलब सानी का फर्स्ट डे कितना सेविंग कर रहे हैं 10 रुपीज, सेकेंड डे 11, थर्ड डे 12, फोर्थ डे 13, फिफ्थ डे 15, ऐसे सेविंग करते चली गई तो पूरे साल में उसका टोटल सेविंग कितना होगा ये हम लोग को फाइंड करना है. सो हम लोग स्टार्ट करते. सानिका saves rupees 10 on the first day, rupees 11 on the second day, rupees 12 on the third day, and so on. So T1 is equal to 11, T2 is equal to 12, T3 is equal to 11, 12, third day. Sorry, first T1 is 10, 11 and 12. 10, 11 and 12. T1 10, T2 11, T3 12, and so on. So T2 minus T1 is equal to 11 minus 10 is equal to 1. T3 minus T2 is equal to 12 minus 11 is equal to 1. Therefore T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. Therefore, the common difference is constant. Therefore 10, 11, 12 ... is an AP. AP यहाँ पे A is 10, A means first term, D is 1, A 10, D 1. हम लोग को क्या फाइंड करना है अभी? टोटल सेविंग. तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा? सेविंग. तो एडिशन कर रहे हैं हम लोग, तो SN, S for sum. So now see here, decide to save like this. Then on 31st December 2016 ये ईयर है. अब ये ईयर में कितने डेज हो गए? सो द ईयर 2016 was a leap year. अभी एक ऐसा पता चला ये लीप ईयर है या नहीं.
हम लोग को पता है ईयर डिवाइडेड बाय 4, ईयर डिवाइडेड बाय 4 इज अ लीप ईयर। जो ईयर 4 से डिवाइड होता है वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। अभी डिवाइड करके देखो, 4 5 are 20, 0 1 0, 4 4s are 16, so remainder is 0. So mean a divided by 4 है, so a year divided by 4 is a leap year. So the year 2016 was a leap year, and a leap year has 366 days. A leap year has 366 days. Therefore, n is equal to 366. मतलब इस सानिका कितने दिन वो सेविंग कर रही है, 366 डेज। सो टोटल सेविंग in 366 days is S366। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, S366। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना पड़ेगा, Sn। सो Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू 366, so 366/2, 2 a is 1 हम लोग ने फाइंड किया, n 366, so a is 10 and d is 1. See here, a is 10, d is 1, so 10 so 366 divided by 2 is 2 1s are 1, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 into 10 20, 366 minus 1 is 365 into 1 183, 20, 365 into 1 365. Therefore 183 into 20 plus 365 is 385. Now 183 into 385 is multiply करो, and answer is 70455, 70,455 we got. Therefore Sanika saved rupees 70,455. So next, question number second. A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest rupees 1,360 in 12 monthly installment, being less than preceding on by rupees 40. Find the amount first and last installment. मतलब क्या फाइंड करना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स T1 that is A and last installment Tn. So what is given, the amount repaid कितना लिया था, 8,000, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट होगा 1,360। ये दोनों हम लोग को क्या करना है,
रिपे करना है, तो ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम लोग को कितना है, 8,000 प्लस 1,360, टोटल 9,360 रुपीज क्या करना है, रिपे करना है। सो SN, हम लोग क्या मिल गया, SN इज इक्वल टू ₹9,360। अभी हम लोग क्या, कितना इंस्टॉलमेंट है, मंथली 12 इंस्टॉलमेंट। द नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट is equal to 12. So n is equal to 12. n का वैल्यू कितना मिल गया हम लोग को, 12 इंस्टॉलमेंट में 9,360 रुपीज उनको रिपे करना है। ईच इंस्टॉलमेंट being less than 40. So each installment is ₹40 less than the preceding one। मतलब वो इंस्टॉलमेंट 40 से 40 रुपीज कम होते जा रहा है। सपोज पहला हम लोग 100 पे करना है, तो नेक्स्ट कितना होगा, 60। 40 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। सो कम होते जा रहा है, मतलब डी का वैल्यू क्या होगा, -40। सो डी इज इक्वल टू -40। माइनस क्यों लिया है, लेस देन, वो इंस्टॉलमेंट कम होते जा रहा है, इसलिए डी इज इक्वल टू -40। सो नाउ हम लोग को क्या फाइंड करना है, पहले एसएन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम लोग को ए मिल जाएगा। ए मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा हम लोग को। सो एसएन इज इक्वल टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का वैल्यू दिया है, कितना है, 9,360। n is equal to 12/2। 2 ये हम लोग को पता नहीं है, n पता है, n इज 12 -1 इंटू -40। 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। 2a 12 - 1 11 into -40 6 2a 11 into 40, answer is 440 minus plus into minus minus। so मिल गया 9,360 is equal to 6 into 2a minus 440। now 9,360 upon 6 is equal to 2a minus 440। अभी डिवाइड करके देखो कितना आंसर आता है, आंसर इज 1,560 is equal to 2a minus 440। so next step, minus 4,440 ए साइड लेके आओ, वो क्या हो जाएगा, ए माइनस है प्लस होगा। सो 1,560 प्लस 440 इज इक्वल टू 2a। ऐड करके देखो कितना आंसर आता है, टोटल एडिशन कितना है, 2,000 इज इक्वल टू 2a। देयरफॉर 2,000 upon 2 is equal to a, therefore 1,000 is equal to a, means a is equal to 1,000। a का वैल्यू मिल गया।
ए मतलब क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड क्या करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिल गया, ₹1000। अभी हम लोग को क्या फाइंड करना है, लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट मीन्स TN। सो फॉर्मूला इज TN इज इक्वल टू A plus n-1 into D. A is 1000 plus n is 12 minus 1 and D is minus 40. n 12, D is minus 40. 1000, 12 minus 1, 11 into minus 40 minus 440, and therefore TN is equal to 560. ये TN का मिल गया। TN mean last installment, and therefore the first installment is rupees 1000 and last installment, the amount of last installment is 560. Got it? तो क्या मिल गया हम लोग को, क्या दिया था, किससे पैसा लिया था, कितना लिया था, 8000, उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे किया उसने, 1360, मतलब उसको कितना पे करना था, दोनों मिला के कितना होता है, 9360, इतना उनको पे करना था। अभी ये कितने मंथ में, 12 मंथली इंस्टॉलमेंट में उनको पे करना है, एक साथ पे करना नहीं। तो n इज इक्वल टू कितना मिला, 12। D देखो क्या है, वो 40 से कम होते जा रहा है, सो D इज इक्वल टू -40। ऐसे इनका फॉर्मूला यूज किया, क्या मिल गया हम लोग को, A का वैल्यू, A मतलब फर्स्ट टर्म दैट इज T1, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट क्या फाइंड किया, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज TN। फॉर्मूला यूज करके कितना आंसर मिला, 560, and therefore first installment is 1000 and last installment is 560. ये फर्स्ट, ये लास्ट मतलब 12th इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, मतलब A फाइंड किया एंड TN फाइंड किया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन थर्ड, Sachin invested ₹5,000 for first year, ₹7,000 for second year, ₹9,000 in third year in National Savings Certificate Scheme. How much amount did he invest in 12 year? सचिन क्या कर रहा है, फर्स्ट ईयर कितना इन्वेस्ट किया है, 5000, सेकेंड ईयर कितना इन्वेस्ट किया है, 7, थर्ड ईयर 9, किसमें किया है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में वो इन्वेस्ट कर रहा है। अभी क्या फाइंड करना है, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर, बट 12 ईयर में वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है, वो हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। सो ईयर T1 कितना है, T1 इज 5000, T2 is ₹7,000, T3 ₹9,000. So T2 minus T1 is equal to 7,000 minus 5,000 is equal to 2,000. T3 minus T2, 9,000 minus 7,000 is equal to 2,000. So D is difference. So D is constant. 2000 same ही है. So common difference. D is constant. Okay. Therefore ये सीक्वेंस क्या है, APA. This
इज एन एपी, मतलब एक गिवन सीक्वेंस जो दिया है वो क्या है, एपी है। अभी एपी है, सो हियर ए कितना है, ए मीन्स T1, ए इज इक्वल टू 5000, डी कितना मिल गया यहाँ पे 2000, डी मिल गया। एन कितना है, कितने इंस्टॉलमेंट, सो कितना ईयर वो इन्वेस्ट कर रहा है 12 ईयर, सो एन इज इक्वल टू 12। क्या मिल गया हम लोग को, ए मिल गया, डी एन। अभी हम लोग को फाइंड क्या करना है, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर, मतलब पूरा अमाउंट फाइंड करना है। तो मतलब ये क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा है, एस एन। सो हम लोग को फाइंड क्या करना है, S12। So formula is Sn, n upon 2, sorry, n upon 2, 2a plus n minus 1 into d, क्या है फॉर्मूला है। s कितना है 12, n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12, so 12 upon 2, 2, a is 5000 plus n is equal to 12 minus 1, d is 2000, कितना है 6, 12 upon 2 is 6, 2 into 5000 10,000 plus 12 minus 1 is 11 into 2000, 6, 10,000 into 11 into 2, 22, that is 22,000, 6, 10,000, 10,000 plus 22,000 is 32,000, and 6 into 32, आंसर मिलेगा 6 into 32,000, आंसर क्या मिल जाएगा 192,000, मतलब क्या मिल गया हम लोग को 1,92,000। सो सचिन invested rupees 1,92,000 in 12 years. Got it?